صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب عورت کا مرد کو پھونکنے کا بیان، حدیث نمبر 5751۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن محمد جفی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف سنانی نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں روح نے اور انہیں عائشہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں موعظات پڑھ کر پھونکتا تھے، پھر جب آپ کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ معمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن شہاب سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر ان کو چہرے پر پھیر لیتے۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب اس شخص کا بیان جو جھاڑ پھونک نہ کرے، حدیث نمبر 5752۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن نمیر نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبدال الرحمن نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا، میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدعملی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہم۔ ایک دوسرے صاحب سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا ہو چکا۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب شگون لینے کا بیان، حدیث نمبر 5753۔ ترجمہ: مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے، کہا کہ ہم سے یونس بن یزید ایلی نے، ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، اور اگر نحوست ہوتی تو یہ صرف 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب شگون لینے کا بیان، حدیث نمبر 5754۔ ترجمہ: ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا ہم کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، نیک فال کیا چیز ہے؟ فرمایا، کوئی ایسی بات سننا۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب فال کا بیان، حدیث نمبر 5755۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر فال نیک ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ نیک فال کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، کلمہ صالحہ، نیک بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب فال کا بیان، حدیث نمبر 5756۔ ترجمہ: ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوئی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فال پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان،
बाब हम कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5757। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन हुक्म ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे निज़र बिन शमील ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इसराइल ने खबर दी, इन्होंने कहा हमको अबू सीम उस्मान बिन आसिम असदी ने खबर दी, इन्हीं अबू साला ज़कून ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लग जाना, बदशगुनी या उल्लू या सफ़र की नहुसत ये कोई चीज़ नहीं है। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब कहानत का बयान। हदीस नंबर 5758। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन खालिद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने और उनसे अबू हरीरा ने कि कबीला हजील की 2 औरतों के बारे में जिन्होंने झगड़ा किया था, यहाँ तक कि उनमें से एक औरत उमतीफ बिन मरू ने दूसरी को पत्थर फेंक कर मारा, जिसका नाम मलिका बिन तवैमर था। वो पत्थर औरत के पीठ में जाकर लगा। यह औरत हामिला थी, इसलिए इसके पीठ का बच्चा पत्थर की चोट से मर गई। यह मामला दोनों फरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए तो आपने फैसला किया कि औरत के पीठ के बच्चा की दियत एक गुलाम या बानदी आज़ाद करना है जिस औरत पर तावान वाजिब हुआ था। इसके वली हमल बिन मालिक बिन नाबगा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी चीज़ की दियत कैसे दे दूँ जिसने ना खाया ना पिया ना बोला और ना विलादत के वक्त इसकी आवाज़ ही सुनाई दी। ऐसी सूरत में तो कुछ भी दियत नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि ये शख्स तो काहनू का भाई मालूम होता है। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब कहानत का बयान। हदीस नंबर 5759। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि 2 औरतें थीं, एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा जिससे उसके पीठ का हमल गिरगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामला में एक गुलाम या बानदी का दियत में दे जाने का फैसला किया। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब कहानत का बयान। हदीस नंबर 5760। तर्जुमा। और इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैब ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनीन जिसे उसकी मुंह के पीठ में मार डाला गया हो कि दियत के तौर पर एक गुलाम या एक बानदी दे जाने का फैसला किया था जिसे दियत देनी थी। उसने कहा कि ऐसे बच्चा की दियत आखिर क्यों दूं जिसने ना खाया ना पिया ना बोला और ना विलादत के वक्त ही आवाज़ निकाली। ऐसी सूरत में तो दियत नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स तो काहनू का भाई मालूम होता है। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब कहानत का बयान। हदीस नंबर 5761। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान इब्न ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबू बकर बिन अबदाल रहमान बिन हारिस ने और उनसे अबू मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, जिना की उजरत और काहिन की कहानत की वजह से मिलने वाले हदिया से मना फरमाया है। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब कहानत का बयान। हदीस नंबर 5762। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं यही बिन रू बिन ज़ुबैर ने, इन्हीं रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहनू के मुताल्लिक़ पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कोई बुनियाद नहीं। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बाज़ औक़ात वो हमें ऐसी चीज़ें भी बताते हैं जो सही हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमा हक़ होता है। इसे काहिन किसी जननी से सुन लेता है, वो जननी अपने दोस्त काहिन के कान में डाल जाता है और फिर ये काहिन इसके साथ 100 झूठ मिलाकर बयान करते हैं। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि अब्दुल रज़ाक इस कलिमा तलक अलकलमा मन अलहक़ को मरसला रिवायत करते थे। फिर इन्होंने कहा मुझको ये खबर पहुंची कि अब्दुल रज़ाक इसके बाद उसको मसंदा आयशा से रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब तिब का बयान। बाब जादू का बयान। और अल्लाह ताला का कौल, लेकिन शयातीन ने इनकार किया, वो लोगों को जादू सिखाता ही और जो चीज़ 2 फरिश्तों हारूत व मारुत पर नाजल की गई और वो दोनों किसी को भी नहीं सिखाता, यहाँ तक कि कह देते हैं कि हम फितना ही इसलिए कफर ना करो। चुनूचे लोग इन दोनों से ऐसी चीज़ सीखते हैं जिसके ज़रिए मर्द और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई कर दें और वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और लोग सीखते हैं वो चीज़ जो इन्हें नुकसान पहुँचाए और इन्हें नफ़ा न पहुँचाए
اور جن لوگوں نے اسے خریدا ہے وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قول لا یفلا السحر ہے ستاور اللہ تعالیٰ کا قول افتاتون السحر وانتم تبصرون، اور اللہ تعالیٰ کا قول یخیل علی من سحر منا تسعور، اللہ تعالیٰ کا قول ومن شر النفاسات فی العقد، اور نفاسات کے منی جادوگر عورتوں کے ہیں جو گنڈا بناتی ہیں اور تسحرون کے معنی ہیں تامون۔ حدیث نمبر 5763۔ ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ اشعری نے بیان کیا، کہا ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں ہشام بن رو نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن اسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دی تھا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لی ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا راوی نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے جبرائیل و میکائیل علیہما السلام آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اسم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے ایک منہ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منہ پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مٹی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان کنگھی بال خرما کا غلاف ہوتے ہی اسی میں دفن کرا دیا۔ عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ، انس بن نیاز اور ابن ابی الزناد تینوں نے ہشام سے یوں روایت کیا، اور لیث بن مسعور اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یوں روایت کیا ہے فی مشت و مشاقہ۔ المشاطہ اسے کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں نکلی سر یا داڑھی کے، اور مشاقہ روئی کے تار یعنی سوتک کے تار کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب طب کا بیان۔ باب شرک اور جادو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ حدیث نمبر 5764۔ ترجمہ۔ مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے سور بن زید نے، ان سے ابوالغیث نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ صحیح بخاری۔ کتاب طب کا بیان۔ باب کیا جادو کا علاج کرنا جائز ہے، اور قتادہ نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ایک آدمی پر جادو کر دی گیا ہے یا وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا گیا ہے تو کیا اس سے جادو کا اثر دور کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے ان کا مقصد اصلاح ہے اور جو چیز مقید ہو اس کی ممانعت نہیں۔ حدیث نمبر 5765۔ ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہا کہ سب سے پہلے یہ حدیث ہم سے ابن جریج نے بیان کی، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے یہ حدیث اور رو نے رو سے بیان کی، اس لیے میں نے رو کے بیٹے ہشام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہم سے اپنے والد رو سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دی گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا، آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہمبستری کی ہے حالانکہ آپ نے کی نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ جادو کی یہ سب سے سخت قسم ہے جب اس کا یہ اثر ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے۔ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دی گیا ہے۔ پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اسم نے، یہ یہودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک شخص تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا کہ کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھے اور بال میں۔ پوچھا جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ نر کھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो कुआं है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। इसका पानी मिदी के अर्क जैसा रंगीन था और इसके खजूर के दरख्तों के सर शैतानों के सरों जैसे थे। बयान किया कि फिर वो जादू कुएं में से निकाला गया। आयशा ने बयान किया कि मैंने कहा आपने इस जादू का तोड़ क्यों नहीं कराया। फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी, अब मैं लोगों में एक शोर होना पसंद नहीं करता। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब जादू का बयान हदीस नंबर 5766। तर्जुमा हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दी गया था और इसका असर ये था कि आपको ख्याल होता कि आप कोई चीज़ कर चुका ही हालांकि वो चीज़ ना की होती। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ रखते थे और मुसलसल दुआएं कर रहे थे। फिर फरमाया, आयशा तुम्हें मालूम है अल्लाह ताला से जो बात मैंने पूछी थी इसका जवाब उसने मुझे दे दिया है। मैंने अर्ज़ की वो क्या बात है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास दो फरिश्ते जबराइल व मिकाईल इल्यामा अस्सलामु आए और एक मेरे सर के पास खड़ा हो गया और दूसरा पाँव की तरफ। फिर एक ने अपने दूसरे साथी से कहा उन साहब की तकलीफ़ किया है। दूसरे ने जवाब दिया कि उन पर जादू किया गया है। पूछा किसने उन पर जादू किया है। फरमाया बनी ज़रीक़ के लबीद बिन इस्म यहूदी ने। पूछा किस चीज़ में। जवाब दिया कि कनघे और बालमी जो नर खजूर के खोशे में रखा हुआ है। पूछा और वो जादू रखा कहाँ है। जवाब दिया कि ज़रवान के कुएं में। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ इस कुएं पर तशरीफ़ ले गए और उसे देखा वहाँ खजूर के दरख्त भी थे। फिर आप वापस आयशा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम इसका पानी मेदी के अर्क जैसा सुर्ख है और इसके खजूर के दरख्त शयातीन के सरों जैसे हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो कंघी बाल वगैरह गिलाफ से निकलवाए या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। सुन लो अल्लाह ने तो मुझको शफा दे दी, तंदुरुस्त कर दी। अब मैं डरा कहीं लोगों में एक शोर ना फैले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सामान के गाड़ देने का हुक्म दिया, वो गाड़ दिया गया। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब बाज़ बयान जादू होते हैं। हदीस नंबर 5767। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि दो आदमी पूरब की तरफ मुल्क इराक़ से सना 9 दो चश्मे में मदीना आए और लोगों को खिताब किया। लोग इनकी तकरीर से बहुत मुतासिर हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ तकरीरें भी जादू भरी होती हैं, या ये फरमाया कि बाज़ तकरीर जादू होती हैं। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब जादू का अजूब खजूर के ज़रिए इलाज करना। हदीस नंबर 5768। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मावी फ़ज़ारी ने बयान किया, कहा हमको हाशिम बिन उक़बा ने खबर दी, कहा हमको आमिर बिन साद ने खबर दी और उनसे उनके वालिद साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना चंद अजूब खजूरें खाली करे उसे इस दिन रात तक जहर और जादू नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी के सिवा दूसरे रावी ने बयान किया कि 7 खजूरें खाली करे। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब जादू का अजूब खजूर के ज़रिए इलाज करना। हदीस नंबर 5769। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्वासामा हमाद बिन उसामा ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे हाशिम बिन हाशिम ने बयान किया कि मैंने आमिर बिन साद से सुना, इन्होंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त 7 अजूब खजूरें खा लें इस दिन उसे ना जहर नुकसान पहुँचा सकता है और ना जादू। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब हामा कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5770। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छूत लग जाना, सफ़र की नहुसत और उल्लू की नहुसत कोई चीज़ नहीं। एक देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर इस ऊँट के मुतालिक क्या कहा जाएगा जो रेगिस्तान में हिरन की तरह साफ चमकदार होता है, लेकिन ख़ारिश वाला ऊँट उसे मिल जाता है और इसे भी ख़ारिश लगा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन पहले ऊँट को किसने ख़ारिश लगाई थी। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब हामा कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5771।
तर्जुमा। और अबू सलीमा से रिवायत है, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने बीमार ऊँटों को किसी के सेहतमंद ऊँटों में ना ले जाए। अबू हरीरा ने पहली हदीस का इनकार किया। हमने अबू हरीरा से अर्ज़ किया कि आप ही ने हमसे ये हदीस नहीं बयान की है कि छूत ये नहीं होता। फिर वो गुस्सा में हबशी ज़बान बोलने लगे। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया कि इस हदीस के सिवा मैंने अबू हरीरा को और कोई हदीस भूलते नहीं देखा। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब उदूए बीमारी का एक से दूसरे को लगना कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5772। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद ने, उनसे इब्न शहाब ने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह और हमज़ा ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छूत लग जाने की कोई हकीकत नहीं है, बदशगुनी की कोई असल नहीं। अगर मुमकिन होती तो नहुसत 3 चीज़ों में होती, घोड़े में, औरत में और घर में। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब उदूए बीमारी का एक से दूसरे को लगना कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5773। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छूत की कोई हकीकत नहीं। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब उदूए बीमारी का एक से दूसरे को लगना कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5774। तर्जुमा। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान ने बयान किया कि मैंने अबू हरीरा से सुना, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज़ ऊँटों वाला अपने तंदुरुस्त ऊँटों वाले के ऊँट में न छोड़े। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब उदूए बीमारी का एक से दूसरे को लगना कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5775। तर्जुमा। और ज़हरी से रिवायत है, इन्होंने बयान किया कि मुझे सुनान बिन अबी सुनान अल-दुली ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छूत कोई चीज़ नहीं है। इस पर एक देहाती ने खड़े होकर पूछा, आपने देखा होगा कि एक ऊँट रेगिस्तान में हिरन जैसा साफ रहता है, लेकिन जब वही एक खारिश वाले ऊँट के पास आ जाता है तो उसे भी खारिश हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन पहले ऊँट को किसने खारिश लगाई थी। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब उदूए बीमारी का एक से दूसरे को लगना कोई चीज़ नहीं। हदीस नंबर 5776। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मैंने क़तादा से सुना और इन्होंने अनस बिन मालिक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छूत लगना कोई चीज़ नहीं है और बदशगुनी नहीं है, अलबत्ता नेक फ़ाल मुझे पसंद है। सहाबी ने अर्ज़ किया, नेक फ़ाल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी बात मुंह से निकालना या किसी से सुन लेना। सही बुखारी किताब तिब का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया जाने के मुताल्लिक जो रिवायती मनक़ूल हैं, रूने हज़रत आयशा रिज़ से इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को रिवायत किया। हदीस नंबर 5777। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने, इन्होंने बयान किया कि जब खैबर फ़तह हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी हदिया में पेश की गई। एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्त हरसा ने पेश की थी, जिसमें जहर भरा हुआ था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर जितने यहूदी हैं इन्हीं मेरे पास जुमा करो। चुनाचा सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम मुझे सही सही बात बता दोगे। इन्होंने कहा कि हमें अबुल कासिम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा परदादा कौन है। इन्होंने कहा कि फ़लाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ कहते हो, तुम्हारा परदादा तो फ़लाँ है। इस पर वो बोले कि आपने सच फरमाया, दुरुस्त फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूंगा तो तुम मुझे सच सच बता दोगे। इन्होंने कहा कि हमें अबुल कासिम। और अगर हम झूठ बोली भी तो आप हमारा झूठ पकड़ लेंगे, जैसा कि अभी हमारे परदादा के मुताल्लिक आपने हमारा झूठ पकड़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख वाले कौन लोग हैं। इन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए तो हम इसमें रहेंगे, फिर आप लोग हमारी जगह ले लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसमें ज़िल्लत के साथ पड़े रहोगे, वालला हम इसमें तुम्हारी जगह कभी नहीं लेंगे।
آپ نے پھر ان سے دریافت فرمایا کیا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبہ نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر سچے ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب زہر پینے اور اس کا علاج کرنے اور جس چیز سے خوف ہو اس کے دور کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5778۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ذکوان سے سنا، وہ ابو ہریرہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ زہر اس کے ساتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ساتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب زہر پینے اور اس کا علاج کرنے اور جس چیز سے خوف ہو اس کے دور کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5779۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو احمد بن بشیر ابو بکر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم نے خبر دی، کہا کہ مجھے عامر بن سعد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے اسے اس دن زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب گدھی کے دودھ کا بیان۔ حدیث نمبر 5780۔ ترجمہ، مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابوادریس خولانی نے اور ان سے ابو سلبہ خشنی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دنت سے کھانے والے درندہ جانور کے گوشت سے منع فرمایا۔ زہری نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اس وقت تک نہیں سنی جب تک شام نہیں آیا۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب گدھی کے دودھ کا بیان۔ حدیث نمبر 5781۔ ترجمہ، اور لیس نے زیادہ کیا ہے، کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے کہ میں نے ابوادریس سے پوچھا کیا ہم دوا کے طور پر گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوروں کے پتے استعمال کر سکتے ہیں یا ان کا پیشاب پی سکتے ہیں؟ ابوادریس نے کہا کہ مسلمان کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، البتہ گدھی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت سے منع فرمایا تھا۔ اس کے دودھ کے متعلق ہمیں کوئی حکم یا ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں ہے، البتہ درندوں کے پتے کے متعلق جو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے ابوادریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو سلبہ خشنی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دنت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب طب کا بیان، باب اگر برتن میں مکھی گر جائے تو کیا کرے۔ حدیث نمبر 5782۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بنی تمیم کے مولی عتبہ بن مسلم نے بیان کیا، ان سے بنی زریق کے مولی عبید بن حنن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں پڑ جائے تو پوری مکھی کو برتن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ صحیح بخاری، کتاب لباس کا بیان، باب اللہ تعالیٰ کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور پہنو اور خیرات کرو لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو، اور ابن عباس رزق نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو بشرطے کہ دو باتیں نہ ہوں، ایک اسراف دوسرا تکبر۔ حدیث نمبر 5783۔ ترجمہ، ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب لباس کا بیان،
बाब उस शख्स का बयान जो अपना अज़ार घसीट कर बग़ैर तकब्बुर के चले। हदीस नंबर 5784। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से तहबंद घसीटता हुआ चलेगा तो अल्लाह पाक उसकी तरफ क़यामत के दिन नज़र भी नहीं करेगा। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे तहमद का एक हिस्सा कभी लटक जाता है मगर ये कि ख़ास तौर से उसका ख्याल रखा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो ऐसा तकब्बुर से करते हैं। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो अपना अज़ार घसीट कर बग़ैर तकब्बुर के चले। हदीस नंबर 5785। तर्जुमा मुझसे बैकंदी मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं इमाम हुस्न बसरी ने और उनसे अबू बकरा ने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप जल्दी में कपड़ा घसीटते हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाए, लोग भी जुमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई, ग्रहण ख़त्म हो गया, तब आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, इसलिए जब तुम इन निशानियों में से कोई निशानी देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाए। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब कपड़ा समेटने का बयान। हदीस नंबर 5786। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको इब्न शमील ने खबर दी, कहा हमको उम्र बिन अबी ज़ादा ने खबर दी, कहा हमको औन बिन अबी जहीफ़ा ने खबर दी, उनसे उनके वालिद अबू जहीफ़ा ने बयान किया कि फिर मैंने देखा कि बिलाल एक नेज़ा लेकर आए और उसे ज़मीन में गाड़ दिया, फिर नमाज के लिए तकबीर कही गई। मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जोड़ा पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए जिसे आपने समेट रखा था। फिर आपने नेज़ा के सामने खड़े होकर 2 रकत नमाज ईद पढ़ाई और मैंने देखा कि इंसान और जानवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नेज़ा के बाहर की तरफ से गुजर रहे थे। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब जो आदमी टखने से नीचे कपड़े पहने तो वो दोज़ख में होगा। हदीस नंबर 5787। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी सईद मकबरी ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखन से नीचे लटका हो वो जहन्नम में होगा। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो तकब्बुर के सबब से कपड़े घसीटता हुआ चले। हदीस नंबर 5788। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबुल ज़नाद ने, इन्हीं अरज ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना तहमद गुरूर की वजह से घसीटता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेगा नहीं। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो तकब्बुर के सबब से कपड़े घसीटता हुआ चले। हदीस नंबर 5789। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी या ये बयान किया कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स एक जोड़ा पहनकर किब्रवाओ गुरूर में सर के बालों में कंघी किए हुए अकड़ कर अतराता जा रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया, अब वो क़यामत तक इसमें तड़पता रहेगा या धंसता रहेगा। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो तकब्बुर के सबब से कपड़े घसीटता हुआ चले। हदीस नंबर 5790। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, कहा मुझको मेरे वालिद ने खबर दी, उनसे उनके चचा जरीर बिन ज़ैद ने बयान किया कि मैं सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ उनके घर के दरवाजे पर था, इन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरफ बयान किया। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो तकब्बुर के सबब से कपड़े घसीटता हुआ चले। हदीस नंबर 5791। तर्जुमा हमसे मतर बिन फजल ने बयान किया, कहा हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मैंने महारिब बिन दिसर काजी से मुलाकात की, वो घोड़े पर सवार थे और मकान अदालत में आ रहे थे जिसमें वो फैसला किया करते थे।
میں نے उनसे यही हदीस पूछी तो इन्होंने मुझसे बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप अपना कपड़ा गुरूर की वजह से घसीटता हुआ चलेगा, क़यामत के दिन उसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र नहीं करेगा। शोबा ने कहा कि मैंने महारिब से पूछा कि इब्न उम्र ने तहमद का जिक्र किया था। इन्होंने फरमाया कि तहमद या कमीज़ किसी की इन्होंने तखसीस नहीं की थी। महारिब के साथ इस हदीस को जबला बिन सहीम और ज़ैद बिन असलम और ज़ैद बिन अब्दुल्लाह ने भी अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत किया। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और लीस ने नाफ़ा से, इन्होंने इब्न उम्र से ऐसी ही रिवायत की और नाफ़ा के साथ इसको मूसा बिन उक़बा और उम्र बिन मोहम्मद और क़दामा बिन मूसा ने भी सालिम से, इन्होंने इब्न उम्र से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। इसमें यूँ है कि जो शख्स अपना कपड़ा अज़रा तकब्बुर लटकाए। सही बुखारी किताब लिबास का बयान बाब किनारीदार तहबंद का बयान। ज़हरी अबू बकर बिन मोहम्मद, हमज़ा बिन अबी असीद व मुआविया बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मनक़ूल है कि वो लोग किनारीदार तहबंद पहनते थे। हदीस नंबर 5792। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझको रू बिन ज़ुबैर और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि रफ़ा क़ुरज़ी की बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। मैं भी बैठी हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर मौजूद थे। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं रफ़ा के निकाह में थी लेकिन इन्होंने मुझे 3 तलाक़ दे दी हैं। मगलज़ा इसके बाद मैंने अबदाल रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह कर ली और अल्लाह की कसम कि उनके साथ या रसूल अल्लाह सिर्फ़ इस झालर जैसा है। इन्होंने अपनी चादर के झालर को अपने हाथ में लेकर इशारा किया। खालिद बिन सईद जो दरवाजे पर खड़े थे और इन्हें अभी अंदर आने की इजाज़त नहीं हुई थी, उसने भी उनकी बात सुनी। बयान किया कि खालिद वहीं से बोले, अबू बकर, आप इस औरत को रोकता नहीं कि किस तरह की बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खोलकर बयान करती है, लेकिन अल्लाह की कसम इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबसम और बढ़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि गालिबन तुम दोबारा रफ़ा के पास जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो तुम्हारे दूसरे शौहर अबदाल रहमान बिन ज़ुबैर तुम्हारा मज़ा ना चख लें और तुम उनका मज़ा ना चख लो, फिर बाद में यही कानून बन गया। सही बुखारी किताब लिबास का बयान बाब चादर का बयान। अनस रिज़्क़ ने बयान किया कि एक अराबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची। हदीस नंबर 5793। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको यूनुस ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अली बिन हसीन ने खबर दी, इन्हीं हसीन बिन अली ने खबर दी कि अली ने बयान किया कि हमज़ा ने हुर्मत शराब से पहले शराब के नशा में जब उनकी औनटनी ज़बा कर दी और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इसकी शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मंगवाई और इसे ओढ़कर तशरीफ़ ले चलने लगे। मैं और ज़ैद बिन हारसा आपके पीछे पीछे थे। आखिर आप इस घर में पहुँचे जिसमें हमज़ा थे। आपने अंदर आने की इजाज़त मांगी और इन्होंने आप हज़रात को इजाज़त दी। सही बुखारी किताब लिबास का बयान बाब कमीज़ पहनने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकायत बयान करते हुए फरमाया कि मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो तो उनकी बीनाई लौट आएगी। हदीस नंबर 5794। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन सलमा ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने के एक साहब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, महरम किस तरह का कपड़ा पहने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महरम कमीज़, पाजामा, बरनस, टोपी या सर पर पहनने की कोई चीज़ और मौज़ा नहीं पहनेगा, अलबत्ता अगर उसे चप्पल ना मिली तो मौज़ू ही को टखनों तक काट कर पहन ले, वो ही जूती की तरह हो जाएंगे। सही बुखारी किताब लिबास का बयान बाब कमीज़ पहनने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकायत बयान करते हुए फरमाया कि मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो तो उनकी बीनाई लौट आएगी। हदीस नंबर 5795। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमको इब्न ईना ने खबर दी, इन्हीं इमरू ने और इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक के पास जब उसे कब्र में दाखिल किया जा चुका था तशरीफ़ लाए, फिर आपके हुक्म से इसकी लाश निकाली गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर उसे रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दम करते हुए अपनी कमीज़ पहनाई और अल्लाह ही खूब जानने वाला है। सही बुखारी किताब लिबास का बयान
बाब कमीज़ पहनने का बयान और अल्लाह ताला का कौल जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकायत बयान करते हुए फरमाया कि मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल दो तो उनकी बीनाई लौट आएगी। हदीस नंबर 5796। तर्जुमा। हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, कहा हमको यही बिन सईद ने खबर दी, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा मुझको नाफा ने खबर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन अबी की वफ़ात हुई तो उसके लड़के अब्दुल्लाह जो मुखलिस और अकाबर सहाबा में थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपनी कमीज़ मुझे अता फरमाइए ताकि मैं अपने बाप को इसका कफन दूँ और आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ इन्हें अता फरमाई और फरमाया कि नहला धुला कर मुझे इत्तिला देना। चुनाचा जब नहला धुला लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ताकि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने आपको पकड़ लिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया अल्लाह ताला ने आपको मुनाफिकीन पर नमाज जनाजा पढ़ने से मना नहीं फरमाया है, और फरमाया है इस्तग़फ़र लहम आवला तस्तग़फ़र लहम उन तस्तग़फ़र लहम सबईन मरा फ़लन यग़फ़र अल्लाह लहम कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो या मग़फ़िरत की दुआ ना करो, अगर तुम 70 मरतबा भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करोगे तब भी अल्लाह इन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा। फिर ये आयत नाज़िल हुई, वला तसल अली आहद मनहम मा ताबदा के, और इनमें से किसी पर भी जो मरगी हो हरगिज़ नमाज ना पढ़िए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़नी छोड़ दी। सही बुखारी। किताब लिबास का बयान। बाब कमीज़ वग़ैरह में सीने के नज़दीक जेब होने का बयान। हदीस नंबर 5797। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू आमर ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन नाफा ने बयान किया, उनसे इमाम हुस्न बसरी ने, उनसे ताउस ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखील और सदका देने वाले की मिसाल बयान किया कि दो आदमियों जैसी है जो लोहे के जबहत सीना और हलक तक पहने हुए हैं। सदका देने वाला जब भी सदका करता है तो उसके जिबा में कुशादगी हो जाती है और वो इसकी उंगलियों तक बढ़ जाता है और कदम के निशानात को ढक लेता है, और बखील जब भी कभी सदका का इरादा करता है तो इसका जिबा उसे और चमट जाता है और हर हल्का अपनी जगह पर जम जाता है। अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपनी मुबारक उंगलियों से अपने गिरेबान की तरफ इशारा करके बता रहे थे कि तुम देखोगे कि वो इसमें वसत पैदा करना चाहेगा लेकिन वसत पैदा नहीं होगी। इसकी मुताबत इब्न ताउस ने अपने वालिद से की है और अबुल ज़नाद ने अरज से की दो जब्बों के जिक्र के साथ, और हंजुला ने बयान किया कि मैंने ताउस से सुना, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने कहा जबतान, और जाफ़र ने अरज के वासिता से जबतान का लफ्ज़ बयान किया है। सही बुखारी। किताब लिबास का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो सफ़र में तंगासतीन वाला जिबा पहने। हदीस नंबर 5798। तर्जुमा। हमसे कैस बिन हिफ्स ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबुलसा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मुसर्रुक ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मगीरा बिन शोबा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए, फिर वापस आए तो मी पानी लेकर हाजिर था। आपने वज़ू किया, आप शामी जिबा पहने हुए थे, आपने कली की और नाक में पानी डाला और अपना चेहरा धोया, फिर अपनी आस्तीनी चढ़ाने लगे, लेकिन वो तंग थी इसलिए आपने अपने हाथ जिबा के नीचे से निकाले और इन्हें धोया और सर पर और मौज़ून पर मसह किया। सही बुखारी। किताब लिबास का बयान। बाब जंग में उनका जिबा पहनने का बयान। हदीस नंबर 5799। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने बयान किया, उनसे आमिर ने, उनसे रूबिन मगीरा ने और उनसे उनके वालिद मगीरा ने बयान किया कि मैं एक रात सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने दरियाफ्त फरमाया तुम्हारे पास पानी है। मैंने अर्ज़ किया कि जी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और चलते रहे यहाँ तक कि रात की तारीकी में आप छुप गए, फिर वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने बर्तन का पानी आपको इस्तेमाल कराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा धोया, हाथ धोए, आप उनका जिबा पहने हुए थे जिसकी आस्तीन चढ़ानी आपके लिए दुश्वार थी, चुनाचा आपने अपने हाथ जिबा के नीचे से निकाले और बाजों को कुहनियों तक धोया, फिर सर पर मसह किया। फिर मैं बढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े उतार दूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहने दो, मैंने तहारत के बाद इन्हीं पहना था, चुनाचा आपने उन पर मसह किया। सही बुखारी। किताब लिबास का बयान। बाब क़बा और रेशमी फ़रूज का बयान, जिसको क़बा भी कहते हैं और बाज़ के नज़दीक उसे कहते हैं जिसके पीछे से कटा हुआ हो। हदीस नंबर 5800।
तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न नबी मलिका ने और उनसे मसूर बिन मखरमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ताफ़बाएँ तक़सीम की और मखरमा को कुछ नहीं दिया तो मखरमा ने कहा, बेटे हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। चुनाचा मैं अपने वालिद को साथ लेकर चला। इन्होंने मुझसे कहा कि अंदर जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा ज़िक्र कर दो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखरमा का जिक्र किया तो आप बाहर तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं क़बाओं में से एक क़बा लिए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैंने तुम्हारे ही लिए रख छोड़ी थी। मसूर ने बयान किया कि मखरमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखरमा खुश हो गए।